Hello dear students, once again welcome to your favorite pharma channel Ram Pharma Academy. In this video we are going to discuss about the notice published by Staff Selection Commission, Government of India. So students, Staff Selection Commission, Government of India has published a notice for Phase 9 2021 selection posts. Means they have published a notice for the Phase 9 2021 examination for the selection of various posts. For that, you have to visit the official website of the Staff Selection Commission, that is ssc.nic.in. Once you visit the official website of the Staff Selection Commission, you will see the notice for Phase 9 2021 examination. You have to click on this notice for Phase 9 2021 examination selection posts. Then you will be able to download the PDF file of the notice, and before applying for any post in the Phase 9 examination, you have to read the notice very carefully. In this video, we are going to cover only about the post pharmacist. Okay, so this video is important for the pharmacy students. So what we are going to cover in this video, pharmacist recruitment under the Staff Selection Commission, like important dates, then educational qualification for the pharmacist post, then the pattern of examination, then next syllabus of the examination, finally salary, and then region-wise number of posts available in the Staff Selection Commission. Okay, so first we'll cover the important dates. Date for submission of online application has already started on the 24th September 2021, and it will be up to the 25th October 2021. Means around 1 month is available for the students to submit their online applications. Okay, so last date for receipt of application, actually you already know that the last date is 25th October 2021, but you have to submit the application only up to the 23:30 p.m. That means up to 11:30 p.m. on the 25th October 2021. ओके सर्व सबको पता चला। तो आपको लास्ट डेट जो है वो है 25th October 2021 up to 11:30 p.m. only. Okay. Then the last date for making online fee payment means आपने अगर एप्लीकेशन 25th October 2021 को किया है पर पेमेंट बाकी है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं. सो लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज 28 October 2021 अप टू 11:30 p.m. ओके, सो 11:30 बजे तक आप 28 तारीख अक्टूबर को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट. देन लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है. लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं फीस पेमेंट के लिए तो आप जो चालान है उसको जनरेट 28 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं 11:30 बजे तक. ओके, एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक. सो जो ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनको बैंक में जाके ये चालान भरना पड़ेगा फीस का. उसकी लास्ट डेट है 1 November 2021. ओके, देन फाइनली द डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और उसकी डेट जो है वो है जनवरी या फिर फरवरी 2022. एग्जैक्ट डेट आपको अभी वेबसाइट पे नहीं मिलने वाली है. जैसे ही वो डेट आएंगे हम अपने चैनल पे बता देंगे. ओके, सो जनवरी या फिर फरवरी 2022 में ये एग्जामिनेशन हो सकती है प्रोबेबल. और जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने की वजह से और कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसको अलग अलग फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा. ओके, सो इसलिए उन्होंने डेट जनवरी से फरवरी तक दी हुई है. ओके, देन विल सी द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एलोपैथिक फार्मासिस्ट. सो यहाँ पर एसएससी में मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फार्मासिस्ट की पोस्ट भरने वाले हैं उसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ये 3 तरह के फार्मासिस्ट की पोस्ट भरने वाले हैं. उसमें से मैं यहाँ पर सिर्फ एलोपैथिक फार्मासिस्ट और वो भी वेस्टर्न रीजन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताने वाला हूँ.
बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग रीजन में और होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैसे चेक करना है वो भी बता दूंगा। तो पहले तो हम देखेंगे एजुकेशनल या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एलोपैथिक फार्मासिस्ट। फर्स्ट पॉइंट है 12th क्लास पास विथ साइंस सब्जेक्ट, मतलब आपको 12th पास होना चाहिए और आपके साइंस सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। दूसरा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब आपके 12वीं होने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 भी होना चाहिए। उसके बाद 2 years experience as pharmacist in any recognized hospital or pharmacy after duly registered as pharmacist under the Pharmacy Act 1948। ओके, सो 2 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप अगर डिग्री की हुई है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी दैट इज बी फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट and registered as pharmacist under Pharmacy Act 1948, then also you can apply for the allopathic pharmacist। okay, so यहाँ पर जो भी बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स है उनके लिए 2 years एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 2 years एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, that is details of examination as given below। so mode of examination मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 hour, मींस यू विल गेट 60 minutes टू सॉल्व द पेपर। सो यहाँ पर क्वेश्चंस कितने वाले होने वाले वो देखेंगे अभी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 100 क्वेश्चंस। सो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 hour का। ओके, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 200 मार्क्स, मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। अगर आप हर सवाल का सही जवाब देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स कितने मिलने वाले, 200 मार्क्स, एंड यू विल बी रैंक्ड एट फर्स्ट पोजीशन। ओके, और यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन का जवाब देते हैं और वो गलत निकलता है, रॉन्ग आंसर आता है, तो उसके लिए आपको 0.5 मार्क्स डिडक्शन किए जाएंगे। ओके, आपके जो मार्क्स मिले हैं उसमें से 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। देन नेक्स्ट हम एग्जामिनेशन का और थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स है। आपको यहाँ पर 4 पार्ट या फिर 4 सेक्शन मिलेंगे एग्जामिनेशन में। फर्स्ट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस। ओके, सेकेंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। देन सी सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, बेसिक अरिथमेटिक स्किल रहेंगी यहाँ पर। और जो डी सेक्शन है या फिर डी पार्ट है उसमें रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तब भी आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछने वाले आपको यहाँ पर वो भी हम देखेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस है वो भी देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे। सो चारों से सेक्शंस में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और वो रहेंगे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस। ओके, सो सभी सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। सो टोटल क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सेक्शन विल बी 50 मार्क्स। सभी सेक्शन में अगर आप करेक्ट आंसर देते हो आपको 50-50 मार्क्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स जो है वो क्या होंगे, 4 सेक्शंस के मिला के मैक्सिमम मार्क्स 200। then total duration it is 60 minutes for the normal students and 80 minutes for the candidates eligible for scribe as per the paras 8.1 and 8.2। अगर आप नोटिस अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसके बारे में
देख सकते हैं ये 80 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स एक्स्ट्रा जो है मिलने वाले हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए मिलेंगे, दिव्यांग कैंडिडेट जो है उनके लिए। ओके, एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप कोई क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग देते हैं तो वहां पर आपके 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होने की वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए एग्जाम सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी सिलेबस क्या है। लास्ट जो एग्जाम थी फेज 8 फेज 7, वहां पर मैट्रिकुलेशन के बेस पर ये पोस्ट भरी जाती थी, मतलब 10th के ऊपर एसएससी के बेस पर एग्जामिनेशन होती थी। और इस टाइम से ये एग्जामिनेशन जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल पर मतलब 10+2 पे होने वाली है, और उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा एप्लीकेशन भी है राम फार्मा एकेडमी। अगर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होने वाली है। ओके, जल्दी से जल्दी मैं जो एग्जैक्ट पैटर्न है, रिसेंट पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का, उसी के तहत हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विथ एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल रेट्स में आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, यही क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछ सकते हैं। इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, मतलब यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेटिक एनालॉजी, symbolic operations, symbolic number analogy, trends, figure analogy, space orientation। ये भी सारी चीजें मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर। आप जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपना जो ऐप है राम फार्मा एकेडमी उसको डाउनलोड करके रख दीजिए और देखते रहिए, वहां पर मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। ओके, सो करंट अफेयर्स या फिर जो कोई हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन्ड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। सो यहाँ पर जो भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को मिला के हम वो टेस्ट सीरीज में ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर सब्जेक्ट है जो कि एसएससी में है, अरिथमेटिक में, नंबर सिस्टम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इन सभी के फॉर्मूलेज जो कोई ट्रिक्स वगैरह है वो भी आपको यहाँ एप्लीकेशन में प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं, पर इसकी भी प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करने वाले, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के देंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये सारा जो सिलेबस है 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है जो कि हमने अभी पढ़ा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता होगा कि 4 सेक्शंस तो है पर वो सभी फार्मेसी को छोड़ के है, तो फार्मेसी के कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले क्या? हाँ बिल्कुल, इस एग्जामिनेशन में फार्मेसी के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ यही 4 सेक्शंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, जो भी आप अभी 4 सेक्शंस देखे, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी। ओके, ये 4 ही सेक्शंस में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा फार्मेसी में आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट वाइज सैलरी। अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पर एसएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है वो 3 तरह के फार्मासिस्ट की पोजीशंस है, एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। ओके, और पे स्केल अगर आप देखेंगे तो तीनों का पे स्केल सेम है एट लेवल 5 इन द 7th पे मैट्रिक्स। ठीक है, 7th
जो पे कमीशन है उसके लेवल 5 में आपको ये स्केल दिया जाएगा। आपकी सैलरी बेसिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 29,200 एंड इट कैन अप टू गो अप टू दी 92,300। ओके, ये बेसिक है 29,200। इसी में आपको बाद में HRA, ओके, DA और जो कोई अदर अलाउंसेस होंगे वो मिला के आपको दिए जाएंगे। अगर करंट पोजीशन अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो इन हैंड अराउंड 40,000 तक जा सकती है। ओके, then next we are going to see the region wise number of posts अवेलेबल। ठीक है, SSC में जो अभी करंट पोजीशन है वहां पर जो पोस्ट दिखाई गई है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। MPR मध्य प्रदेश सब रीजन जो है वहां पर मध्य प्रदेश सब रीजन में एलोपैथी में 12 पोस्ट है, आयुर्वेदिक में 3 और होम्योपैथिक में 3 पोस्ट अवेलेबल है। नॉर्दर्न रीजन में एलोपैथिक में 49 पोस्ट है। ओके, बहुत ज्यादा पोस्ट है यहाँ पर एलोपैथी में। देन आयुर्वेदिक में 15 पोस्ट और होम्योपैथिक में 8 पोस्ट है। देन वेस्टर्न रीजन, इसमें हम फिर से 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है यहाँ पर। वेस्टर्न रीजन में मुंबई में अगर देखा जाए तो एलोपैथी में 13 पोस्ट है, आयुर्वेदिक में 2 और होम्योपैथिक में 3 पोस्ट है। वेस्टर्न रीजन गुजरात में 9 पोस्ट इन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक में यहाँ पर कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है फिलहाल, और होम्योपैथिक में 1 पोस्ट। वैसे ही वेस्टर्न रीजन पुणे में एलोपैथिक में 6 पोस्ट, आयुर्वेदिक में 1 और होम्योपैथिक में 1। एंड देन फाइनली इन द वेस्टर्न रीजन दैट इज नागपुर, एलोपैथिक में 2 पोस्ट है और आयुर्वेदिक में 1। सो टोटल अगर पोस्ट हम देखते हैं तो एलोपैथिक में अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अवेलेबल पोस्ट जो है वो 91 है, आयुर्वेदिक में 22 और होम्योपैथिक में 16 पोस्ट। और टोटल अगर हम फार्मासिस्ट की पोस्ट अवेलेबल देखते हैं तो वो ग्रैंड टोटल आता है 129 पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमने बताया वो उसी नोटिस में से एक्सट्रैक्ट करके फार्मासिस्ट का डाटा निकाल के आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन पोस्ट डिटेल्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमने चेक की थी वो सिर्फ मैंने बताया था कि वेस्टर्न रीजन में एलोपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में। ओके, सो अगर आपको भी सिलेक्शन पोस्ट डिटेल्स मतलब पोस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीजन में जाके डिटेल्स ऑफ पोस्ट फेज 9, इसके ऊपर जाके आपको क्या करना है, रीजन पे सेलेक्ट करना है। रीजन पे सेलेक्ट करने के बाद कौन सा रीजन है आपको जहां पर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर एग्जामिनेशन में फेज 9 ही रखिए और सबमिट बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इन डिटेल उस पोस्ट के बारे में कितनी पोस्ट है, कास्ट वाइज सब डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये सारी जो मैंने अभी बताए उसके लिंक्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने वैसे लिंक शो किए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, फॉर सो स्टूडेंट्स दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। आप सभी ने आप अभी देखा होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फार्मासिस्ट पोस्ट है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। और बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट यू हैव टू रीड द कंप्लीट नोटिस केयरफुली। ठीक है, सारी चीजें केयरफुली आपको पढ़नी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ओके, और आपको अगर एप्लीकेशन के बारे में जानना है हमारे राम फार्मा एकेडमी के बारे में तो यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, ये जो है वो लिंक यहाँ पर आपको शो हो रही है, उसका यूज करके भी आप हमारा एप्लीकेशन राम फार्मा एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यू कैन यूज द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जल्द से जल्द हम फार्मेसी टेस्ट सीरीज जो है स्पेशली फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल की जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना जो वीडियो है स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।